Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel if you guys are watching me for the very first time. My name is Khushbu Pradhan and आज का वीडियो क्या है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा. It's about all about in fact cabin crew related questions only जो कि आप लोग ने ही मुझे पूछा था. I think around 3 to 4 days ago I posted a post in my YouTube channel जहाँ पर मैंने बोला था you can ask me anything related to cabin crew and मैंने वो ही screenshot लेके Instagram में भी डाल दिया because I wanted most of my viewers, followers, subscribers, whoever aspires to become a cabin crew to ask me whatever questions they have, whatever doubts they have, so that मैं वीडियो के दौरान क्लियर कर दूँ बोल के. So I am finally here with all the questions. Though I am pretty surprised मुझे इतना सारा questions नहीं आया है, but never mind, I have picked on most of the questions and सारा questions तो मतलब pick नहीं कर पाए because most of the questions was similar. Like किसी को height के बारे में जानना था, किसी और को भी जानना था. तो don't worry guys, एक तो question pick कर लिया है, उसके आंसर में आप लोग का आपका आंसर भी मिल जाएगा. So without any further ado, let's get started with the video. एंड डोंट माइंड गाइस, आई एम टॉकिंग वे टू फास्ट बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन है एंड मुझे सबका रिप्लाई करना है. सो आई डोंट वांट टू डू अ पार्ट 1 पार्ट 2 बोल के. सो it's pretty fast and answers are also going to be real, quick, genuine, honest out of my experience. Don't feel bad about it, don't feel happy. जो मुझे लगता है कि मुझे झटपट से आया है आंसर, जो कि लगता है कि बेस्ट सूटेड है, मैं वही बोलूँगी. So without any further ado, again let's get started with the video. Did you get your salary during lockdown? I think ये तो कितना जन को पता रहेगा ही पहले से. I think Indigo was the only airline जिसने फुल सैलरी पे किया है अपने एम्प्लॉयज़ को. 2 फ्लाइट नहीं चला था पर लॉकडाउन के दौरान फुल सैलरी पे किया गया था. 2 बाद में पे कट था पर इनिशियल 3-4 months full salary were paid to all the employees by the airline and pretty happy about that. बिना काम करे पैसा मिल गया. Anyways, has any cabin crew lost their job due to COVID-19? Yes, many of them lost their job during the period of COVID-19, but I think around maybe 6 to 8 months ही उन लोग को रिहायर किया गया because of course कोविड धीरे धीरे जाने तो नहीं लगा but people were getting used to and जैसे ही रिहायर करने लगा ओल्ड एम्प्लॉयज़ को priorities दिया गया and they were called back. जिसको ज्वाइन करना था वो आ गया, जिसको नहीं ज्वाइन करना था वो नहीं है. So they were rehired. They lost their job but they were rehired later. Is there any hair requirement since I have very thin hair? So I'm little worried about it, although it is good to go. ऐसे तो मैंने कभी सुना नहीं है कि हेयर का कोई रिक्वायरमेंट होता है इंटरव्यू के दौरान, बट येस वंस यू गेट सेलेक्टेड थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होता है कि लाइक शॉर्ट हेयर तो इतना शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग तो इतना लॉन्ग कर सकते हो एंड स्पेसिफिक हेयर कलर दिया जाता है, ये कलर. बट आई हैव नेवर सीन किसी का ये प्रॉब्लम कि पतला बाल होने से ही डिड नॉट गेट सेलेक्टेड और समथिंग लाइक दैट. क्योंकि आई हैव सीन इन एयरलाइंस जिसका पतला से पतला बाल होता है, दे आर स्टिल वर्किंग विद एयरलाइंस. सो आई एम प्रीटी श्योर यू आर गुड टू गो. एंड अगर आपका बहुत ही बाल पतला है तो वो यू कैन यू नो ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट, लाइक मे बी कुछ सीरम. दे आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर हेयर फॉल, पतला बाल के लिए. नाउ सीरम, गुड हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई एम प्रीटी श्योर you are good to go and you will surely be selected. Another question being, in which year did you join your cabin crew job? I think I joined my cabin crew job in the year 2017. And why did you leave your job, your cabin crew job? I think specifically I have made this video जहाँ पर मैंने बोला है कि why did I leave my job बोल के, because there were so many reasons. एक reason नहीं था, बहुत सारे reasons था. आप वो वीडियो जानना चाहते हो तो नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगी, पर थोड़ा सा बोल देती हूँ क्योंकि आपने पूछा ही है बोल के. Because I want to do something else in life and मेरा with time I wanted to do something greater in life. I wanted to, मेरा priorities changed. Like it's not a bad job, cabin crew, but मुझे कुछ और करना था ज़िंदगी में basically. तो मैंने छोड़ दिया. And there were few other reasons जहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है. आप नीचे लिंक शेयर कर दिया है वो वीडियो का, वहाँ पर जाके देख सकते हैं. मैंने फुल बात किया है कि क्यों मैंने छोड़ा, what was the reason. Another question being, hi, first of all, big congratulations to you Manishta. मोनी cabin crew मा सेलेक्ट भएको थिए हो अनि मेडिकल्स पनि क्लियर गरे, जोइनिङ डेट पनि आएको थियो तर अनफर्चुनेटली एन्ड मोमेन्टमा मैले जोइन गर्नु सकेन. 6-7 months अगाडिको कुरा हो यो. नाउ एभ्रिथिङ इज फाइन. क्याबिन क्रूको लागि फेरि ट्राई गर्नु चाहन्छु. म फेरि सेलेक्ट हुन्छ र इफ मैले एचआरलाई मेरो पास्ट हिस्ट्री भने. नाउ थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ये नेपाली में दिया गया है क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि बेसिकली क्या बोला गया है कि शी मीन्स लाइक शी हैड क्लियर्ड एवरीथिंग अबाउट इंटरव्यू. पहले मेडिकल भी क्लियर हो गया था एंड ज्वाइनिंग डेट भी दिया गया था उसे, बट फॉर सम रीजन शी कुडंट ज्वाइन. इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक 6 to 7 months. Now she's asking me if I can be selected again if I talk to HR about the same. Now in this matter I think I'm not the right person to say कि आप select होंगे नहीं होंगे because it's totally on HR
कि आपका फिर इंटरव्यू लेना चाहते हैं, फिर नहीं लेना चाहते, फिर सीधा ज्वाइनिंग डेट दे दे आप लोग का रीज़न जान के। पर जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, वंस यू गेट सेलेक्टेड और वेरियस रीजन से आपने ज्वाइन नहीं कर पाई तो आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। अब इंटरव्यू के दौरान आप बोल सकते हो एचआर को, कभी कभी यू नेवर नो योर लक, एचआर को बोल सकती हो कि मैंने सिलेक्ट हो गई थी, ये एचआर डेट भी आया था, ये डेट आया था। ऑफकोर्स आप लोग को लेटर मेल वगैरह आता है, तो वो दिखा के मे बी आप लोग को इंटरव्यू ना ले, सीधा ज्वाइनिंग डेट में मतलब होता है ना आई में पहुंचा दे जहाँ पर ट्रेनिंग होता है। पर कभी भी क्या होता है, कभी कभी आपको स्टार्टिंग से इंटरव्यू देना भी पड़ सकता है। सो आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू यू कैन ऑलवेज टॉक टू एचआर रिगार्डिंग द सेम। And what's your height? And it is 5'9", allowed to join Indigo. My height is 157 centimeters, and yes, minimum height centimeter requirement is like 155. फिर 5'9" तो allowed है, ऐसा कोई maximum upper limit तो नहीं दिया गया कि आप 6 feet हो तो select नहीं होंगे या 5'9" हो तो select नहीं होंगे, because they are so tall crew in airlines. They are still working, so I'm pretty sure 5'9" is allowed in Indigo. What if मुझे मेकअप ऑन फ्लिक नहीं आता, क्या मिनिमल मेकअप इंटरव्यू के टाइम रहेगा तो चलेगा? एंड वन मोर थिंग कि अगर इंटरव्यू जैन में हो तो कैसे ड्रेसअप होके जाए? मीन्स विंटर ब्लेजर या स्वेटर, कोई ठंड बहुत होगा ना दिल्ली में, पर कंपनी साइट पे इससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। होप यू गॉट माई पॉइंट। आई टोटली गॉट योर पॉइंट एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे करके जाए, बिकॉज अभी तो विंटर है, वहाँ पर कंपनी साइड में लिखा नहीं जाता है, मुझे भी पता है, बस बोला जाता है कि स्टॉकिंग्स लगाना पड़ता है, शर्ट लगाना पड़ता है, बट ऐसे कोई लिखा नहीं जाता है। तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन काजल। एंड फर्स्ट योर क्वेश्चन बीइंग मेकअप ऑन फ्लिक नहीं आता तो क्या करें? आई थिंक आई वुड से माई ओपिनियन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ। तो अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे भी मेकअप नहीं आता था पहले, इनफैक्ट किसी को नहीं आता, नो वन इज बॉर्न लाइक दैट, बट मेक इट अ पॉइंट कि एवरी डे व्हेन यू वेक अप, एवरी डे यू गिव योर सेल्फ 1 घंटा 2 घंटा मेकअप के लिए दे दो। एंड यूट्यूब में कितना सारा वीडियोज रहता है इंटरव्यू के लिए, बेसिक मेकअप कैसे किया जाता है, एंड आप जैसे ही लर्न करते जाओगे ना आपको मेकअप आता ही जाएगा। सो यू विल ऑल्सो फील नाइस व्हेन यू ग्रूम योरसेल्फ एंड गो इन फ्रंट ऑफ एचआर, यू विल ऑल्सो फील नाइस, एंड उनको भी लगाएगा हाँ एफर्ट लगाया, बिकॉज यू गाइज नो ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इन एयरलाइंस। एंड अच्छा भी नहीं लगेगा ना, यू विल ओनली फील बैड, बिकॉज इमेजिन आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे आप खाली एक जन नहीं रहोगे, वहाँ पर 100 और जन भी रहेगा जिसने मेकअप अच्छे से किया होगा, बिकॉज कितना सालों से सपना रहेगा कि कैबिन ग्रुप बनना है बोल के। सो तो लर्न करके आएंगे, अच्छे से ड्रेसअप होके आएंगे, अच्छे से बोल के आएंगे, अच्छे से सीख के आएंगे। तो इमेजिन वहाँ पर आपका मेकअप अच्छा नहीं है तो कैसा लगेगा, आप लोग ही सोच लीजिए, लाइक मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं। सो आई वुड से मेकअप नहीं आता है टोटली फाइन, बट आई वुड से प्लीज पुट एन एफर्ट एवरी डे, मे बी 1 घंटा 2 घंटा दो, एंड नो हाउ टू लर्न डू योर मेकअप, एटलीस्ट बेसिक थिंग लाइक आई लाइनर अच्छे से लगाना, आईब्रोज करना, ब्लश लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये सब सीख के चले जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। सो प्लीज लर्न हाउ टू डू मेकअप। अगर आपको आता भी नहीं है सीख लीजिए, कोई बड़ा बात तो नहीं है, मैंने भी सीखा है सारा और जन ने भी सीखा है, सो यू कैन ऑलवेज लर्न। एंड ड्रेसअप के लिए मेरा भी इंटरव्यू जब था, इट वॉज इन द मंथ ऑफ आई थिंक इट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी, सो दिल्ली में ही था मेरा इंटरव्यू, तो इट वॉज प्रीटी कोल्ड। तो मैंने क्या किया था, जब मैं वहाँ पर, बिकॉज तभी तो हम लोग का प्रोसेस नहीं हुआ था, अभी पता नहीं कैसा है, पर तभी तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 70-80 जन थे इंटरव्यू के लिए। सो वी यूज्ड टू बी इन द वेटिंग लाइन। तो जब आप वहाँ पर इंटरव्यू मतलब जहाँ पर होता है अंदर जाते हो, वहाँ पर इट्स वेरी वार्म एंड कोजी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है रूम का। तो मुझे ऐसे जो ब्लेजर मोटा सा लगाना नहीं पड़ा, मैंने छोटा सा पतला सा ब्लेजर लगाया था, इट वॉज प्रीटी वार्म फॉर मी। और जब मैं एचआर के पास गई या इंटरव्यू के लिए हेड के पास गई, तब मैंने क्या किया, ब्लेजर खोल दिया, शर्ट लगा के मैं चले गया, एंड इट वाज ओके। जैसे मैंने बोला कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है तो इतना ठंड नहीं होता है, पर अगर आपको बहुत ही ठंडा लगे तो कोट लगा के जा सकते हो जब एचआर के पास या किसी और के पास मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। जब अंदर जाते हो रूम में, व्हेन यू एंटर दैट रूम, मेक श्योर यू ओपन द ब्लेजर, कीप इट असाइड एंड एंटर द रूम, इट विल बी फाइन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन आई अप्लाई टू एन इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए आप ऑनलाइन हमेशा सर्च कर सकते हो, एंड इंटरव्यू सिलीगुड़ी में हो ये हो तो, और गूगल करके हमेशा कर सकते हो। वहाँ पर मैंने भी ऐसे चेक किया था, लाइक इंडिगो इंटरव्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये सब करके वहाँ पर आ जाता है। I have a chicken pox scar between my eyes and nose, and I have a mole in my face. Can I be able to become a cabin crew after having that?
आई थिंक दैट्स प्रीटी ओके, बिकॉज मैंने कितना जन का देखा है कि स्कार्स होता है, चिकन पॉक्स का स्कार्स। मेरा भी इनफैक्ट दिखेगा नहीं थोड़ा बहुत, यहाँ कहाँ पर एक गड्ढा सा है चिकन पॉक्स का। तो आई गॉट सेलेक्टेड, आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो गेट सेलेक्टेड, प्रोवाइडेड इट्स नॉट सो बिग कि विजिबल ऐसा होने वाला है। क्यों छोटा मोटा तो स्कार्स पिंपल्स किसका नहीं होता, सबका होता है, दैट्स ह्यूमन। सो आई एम प्रीटी श्योर यू आर गुड टू गो. And there's a question. I did not know how to read Hindi, but I can speak Hindi properly. So can I will be selected for cabin crew interview in domestic airline if I did not know to read Hindi? अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है पर बोलना अच्छे से आता है, then trust me, you are good to go for the interview. Height and teeth related issue clear कर दो दी. Height का तो requirement you guys know, it's minimum is 155 centimeters if you are working for Indigo, and दूसरा सब एयरलाइंस का पता नहीं, बट व्हेन यू लुक फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ये एयरलाइन गूगल कर लो, वहाँ पर क्लियरली लिखा जाएगा कि इतना सेंटीमीटर्स है बोल के, पर इंडिगो का स्पेसिफिकली इट्स 155 सेंटीमीटर्स मिनिमम. एंड टीथ रिलेटेड इशू तो कुछ नहीं है, बस टीथ का व्हेनेवर यू स्माइल इट शुड लुक नाइस एंड पॉलिश्ड एंड ब्यूटीफुल एंड यू आर गुड टू गो. कैन वी गेट हॉलीडे ड्यूरिंग आई फ्लाई ट्रेनिंग पीरियड? नो, इतना को पता नहीं होगा. ये आई फ्लाई मतलब इंडिगो का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है, वो दिल्ली में है. एंड ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को छुट्टी नहीं मिला जाता. लाइक अगर आप पूछ रहे हो कि सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है कि नहीं, तो यस, सैटरडे और संडे छुट्टी मिलता है. बट मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गया या कोई इमरजेंसी हो गया फैमिली में कि घर जाना है बोल के, तो इससे छुट्टी नहीं मिलता है. लाइक अगर आपको छुट्टी मिलता भी है तो जहाँ पर आपने स्टॉप कर लिया वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, दोबारा से पहले से जहाँ पर अब इनिशियल स्टार्ट होता है वो ट्रेनिंग इनिशियल डेज से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा. कैन समवन बी कैबिन क्रू विथ 150 हाइट एंड व्हाट्स योर हाइट? हैव यू सीन एनी शॉर्टर गर्ल who is working for in airlines? I am so sorry to say this, but the minimum height requirement for cabin crew is 155 centimeters, and उससे नीचे select नहीं होते because the minimum requirement 155 centimeters रहता है, and my height is 157 centimeters. And I have seen shorter girls in working for airlines. I am also not so tall, but minimum 155 होता है, उससे short select नहीं होते लोग because उन लोग का एक requirement है कि 155 होना ही चाहिए बोल के. And another question being is, can I become a cabin crew with crooked teeth? Yes, like I said, as long as you look nice, beautiful, when you smile, you are good to go. I have gap between my lower teeth, so I go for interview, it might be a break in this. Gap जैसे तो I have seen many of them crew का होता है, but अगर आपका ज़्यादा ही गैप है तो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से, बट एज लॉन्ग एज इट लुक्स नाइस, जैसे मैंने बोला कि जब आप हंसते हो अच्छा दिखता है, इट डजंट लुक वेरी वियर्ड, देन यू आर गुड टू गो. Why you did not join international airline before your marriage? I did not join international airline before because I was never interested, and when I got interested I was like नहीं ये जॉब करना ही नहीं. Then I left it and I'm here now. Why do you before cabin crew, what did you do before cabin crew job and after cabin crew job? How much you changed or grew with this job? मैंने cabin crew करने से पहले कुछ जॉब नहीं किया because I was under 18, and this was my first job as a cabin crew. And another question being, how much you changed or grew with this job? I think I changed a lot because of this job. It gave me a lot of confidence. Whatever I have or I've become, I think all this my job, cabin crew job, has a lot to do with it because it made me a little confident, that's for sure, and it made me a better person. It gave me an overall view of life कि बाहर काम करोगे तो कैसा रहेगा लाइफ, किसी के अंडर में काम करते हो तो कैसा रहेगा लाइफ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू नो कैबिन क्रू का जॉब कैसा होता है, तो आई केम टू नो दैट ऑल्सो. सो इट चेंज्ड मी अ लॉट, इट मेड मी अ बेटर person, that's for sure. I won't deny that, never deny that in fact. So overall I think the growth was pretty nice, and I am quite satisfied with the person I have become now because of airlines. Another question being, do you feel that after marriage you are not able to leave your husband alone and that's why you dropped this job? Please answer if you're comfortable. No, it's not like I was not able to leave my husband alone or something like that. I just left my job before getting married, and I was never on the thought कि I would leave my job because I wanted to get married. but ऐसा नहीं था. I left my job, then later when I came here I was like जॉब भी छोड़ दिया है, आई वॉज योर ओनली, देन एनी वेज एक ना एक दिन तो शादी करना है बोल के, देन आई गॉट मैरिड. इट वॉज नेवर लाइक कि जॉब छोड़ दूंगी फिर शादी करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद माई हस्बैंड, ऐसा कभी नहीं था. सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ दैट.
नाउ ऑल दिस क्वेश्चन यूट्यूब का था. नाउ कम्स इंस्टाग्राम क्वेश्चन. जल्दी जल्दी कर रही हूँ गाइज, मैं बहुत लंबा बात कर रही हूँ एक ही वीडियो के बारे में. आई मीन एक ही क्वेश्चन के बारे में. Do you look so good in your cabin crew uniform? Thank you so much. I also very much liked in Indigo uniform. In fact, I feel like Indigo का uniform was one of the best uniforms in India. जो भी airlines का है, मुझे सबसे ज़्यादा Indigo का ही पसंद है. That hat and that scarf, oh my god, gave me almost like a cabin crew वाला vibe. So I also pretty much like, to be honest, in my uniform. Another question being, what is the height required for Indigo airline? I'm confused. I'm 155. Oh my god, ये question तो आपका ही नहीं, बहुत सारा आया था guys. The minimum height requirement of a cabin crew is 155 centimeters. यानी कि 155 centimeters से आप 1 सेंटीमीटर भी कम हो, मान लीजिए 154 हो, you will not be selected. अब थोड़ा बढ़ जाए, 155 हो जाए, you will be selected. बट 155 से कम हो, सेलेक्ट नहीं होगे. 155 से ऊपर जितना भी हो, ऐसे कोई ऊपर का लिमिट नहीं है. 180, 190, 100, 200, 300 भी हो, कुछ नहीं होगा. पर 155 से अबव होना पड़ेगा आपको. 155 भी हो तो चलेगा गाइज, एंड 155 एंड अबव. इज इट वर्थ डूइंग? This is a very, 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 very tough question. I would say I think it was worth doing. That's why I did for so many years. I almost worked as a cabin attendant for 5.5 years. It would be so wrong of me if I say it is not worth doing. But of course, you should know when to quit, because this is such a job. You just get so occupied. Time just passes by, flies. In fact, anywhere. Like right now also I'm here and time is just passing by so quick. So you should know when to quit, you know. अगर आप ये करते ही जाओगे, maybe you join when you are 20 and you do it for 10 years, you'll all be 30. So इसके बाद I don't see any मतलब होता है ना कि करियर की कहाँ पर करना है बोलोगे, because this job I feel like you can't do it forever. It's a very tough job, to be honest. So maybe you do it for some time, maybe for 4-5 years, if you really want to be a cabin crew, if you really want to see कैसा होता है life, क्या होता है, you want to experience being a cabin crew, then yes, it's worth doing. But if you do in a very long term, मान लीजिए आप 15 साल के लिए यहाँ पर अटक जाए, उसके बाद I feel there's a darker side जो कि I did not want to go through. That's why I left. Varna to it's a worth doing job. I did it for 5.5 years and I enjoyed thoroughly of what you know, the company gave me, what the airline gave me, the salary I had, the life that I had, the places I went. So I thoroughly enjoyed it. Just that I did not want to do it for a longer period of time, because uske baad I don't see bright future in airlines. Like बहुत ज़्यादा कर लिया तो 10-15 ईयर्स के बाद आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग एनी थिंग. मतलब क्या करूँ उसके बाद, ऑप्शन नहीं होता है. सो आई लेफ्ट इट राइट नाउ सो दैट यू नो आई कैन डू समथिंग एल्स, फोकस ऑन समथिंग एल्स, एंड लेटर इन लाइफ में 5 years from now I can become someone else. That's it. And another one, after 12 graduation, what will you suggest to join aviation? See, this is a very question which I think I am not the right person to answer. I would say it's your choice. If you want to become a cabin attendant, work for some time. Like I said, working for some time, it's not a problem. Maybe if you want to work for 5-7 years, it's totally okay, because once you do your 12, I think you're just 18-19 years old. So maybe if you do for 7 years also, you'll not be that old, you'll not reach 30. But say if you do it for 15 years, then I don't know, it's a personal choice though. मुझे लगता है कि then there's a darker side you'll see. You don't know what to do in life, but maybe you want to be a cabin crew. आपको life face करना है, देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है. It's a very fancy life, it's a very nice life, you earn a lot. तो वो देखना है तो आप join कर सकते हो. Maybe work for some time, but then decide what is to be done. Don't decide your future being a cabin crew forever. मतलब forever जैसे तो कोई होता भी नहीं है, because you know the requirements criteria कि need to be maintained, and with the odd timings you have, you can't do it forever. It's a very tough job. There's a brighter side of it. There's pros, there's cons also, but more of cons I would say. Like with time, like जितना old हो जाते हो, you need time for yourself, जो कि airlines में इतना नहीं मिलता है, because odd timing, odd schedule, everything ऐसा रहता है. So maybe if you want to work for 3-4 years, 5-6 years, maybe max to max 7 years, I think it's good to go. But after that, you need to think of something else. That's what I would suggest, because that's what I did. My personal opinion, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबका ये होना चाहिए, but that's my personal opinion according to what I felt, to be honest guys. And another being, where you gave your interview. I gave my interview, पहले तो सिलीगुड़ी में दिया गया था, and उसके बाद I got selected होके दिल्ली में दिया था लास्ट में. Can you join the cabin crew after getting married? Yes, you can join after getting married also. In fact, there are so many crew are married, still working, so it's not a problem. Hello Nana, wait. Hello Nana,
Can you please tell me what and how do they teach at the iFly Institute? They teach very well. Like basic thing जो आप लोग को जानना पड़ता है फ्लाइट के बारे में, वो सब सिखाया जाता है वहाँ पर. तो इट्स प्रीटी नाइस. इट्स आई थिंक द बेस्ट इनफैक्ट. वहाँ पर जो मेंटेन रहता है टाइम वगैरह, तो डेकोरम रहता है. आई रियली लाइक ऑफ iFly. सो वहाँ पर द बेस्ट होता है. डोंट वरी गाइज, आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे. आपको जो जानना पड़ता है फ्लाइट के बारे में वहाँ सब सिखाया जाएगा. And my eyesight is weak. It's about -4. I use lens. What should I do or do in the interview regarding this? It's okay if you are -4, -5, -6 जितना भी हो, as long as you are wearing the lenses, as long as you can read. वहाँ मेडिकल में दिया जाता है रीड करने के लिए. as long as you can read that from far. अगर लेंस लगा के भी you are good to go. ऐसा नहीं कि लेंस लगाना अलाउड नहीं है. मेरा भी दोस्त कितना जन थे जो लेंस लगाते थे, जो -2 थे, -3 थे. तो as long as you wear lenses, you are good to go guys. It gives toxic environment to work sometimes. I would say, to be honest, it was never a toxic environment for me to work. To be honest, कभी ऐसा environment नहीं रहा कि it was too toxic. Maybe crew were not nice, maybe staff were not nice. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उछल पुछल में जल्दीबाजी में कोई क्या बोल दे और मन में लग जाए. पर ऐसा टॉक्सिक वाला टॉक्सिक लाइक होता है कि हाँ कहाँ पर काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा वाला कभी नहीं था इंडिगो में. इनफैक्ट आई डोंट थिंक ये कोई कॉर्पोरेट में रहता भी है. मतलब मैं जहाँ पर काम कर रही थी तब तो नहीं था. आई डोंट नो अभी कैसा है, बट फॉर मी इट वॉज नेवर एक्सपीरियंस की टॉक्सिक वाला था. मुझे फ्लाइट जाने का मन नहीं करता था. हाँ, मेरे में था कि मैं आलसी हो गई, मुझे जाना नहीं है, काम नहीं करना है, वैसा वाला था. पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो नो गाइस, कभी नहीं था. एंड आई हैव crooked teeth and my face is chubby. Can I be a cabin crew? Lots of love. ये तो मैंने बोल दिया पहले ही कि आप as long as you look pretty when you smile, it's a good to go. My face is chubby. Can I be a cabin crew? Lots of love. हाँ, चबी हो तो यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू. ऐसा तो नहीं है कि इफ योर फेस इज चबी यू कैन बी अ कैबिन क्रू. इनफैक्ट आई वाज हैव अ चबी चिक्स एंड आई वाज अ कैबिन क्रू. इनफैक्ट व्हेन आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक, मे बी एयरलाइन ज्वाइन करने के 1 साल या 2 साल बाद, तो आई वाज सो फैट. I mean, I would say fat only because इतना gain हो गया था. I was almost like 58 kgs guys, and imagine 157 with 58 kgs. Oh my god, मेरा इतना मोटा हो गया था guys. I was good to go, but of course it is not good for yourself if you are really into ज़्यादा weight बढ़ रहा है. तो I maintained, but yeah, you are good to go if you have a chubby cheeks also, not a problem as long as आपका weight maintain है. तो can I become a cabin crew even if I have scars on my face or legs? Yes, you can become a cabin crew even if you have scars on your face or legs. हाँ, provided if you have बड़ा सा scars है, आपको जो visible है, अच्छा ही नहीं दिखता, that's a different story. but छोटा मोटा scars, pimples किसका नहीं होता guys? मेरा तो देखिए pimples इतना सारा है, टिक 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 टिक, और मेकअप रिमूव करेंगे तो और पेपर. as long as मेकअप से हाइड होता है थोड़ा पिंपल, तो they are also human. HIV human है ना, उन लोग को भी तो आता होगा पिंपल्स, उन लोग भी समझते हैं. इनफैक्ट बीच में तो मेरा इतना सारा पिंपल्स था, मेकअप से भी हाइड नहीं होता था, फिर भी आई वाज देयर. बस बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए इतना बड़ा पिंपल्स हो, इतना बड़ा स्कार्स हो, तो ऑफकोर्स नहीं होता है. बट यू कैन ऑलवेज डू ट्रीटमेंट, दैट्स ऑलवेज देयर. बट थोड़ा मोटा पिंपल्स हो, थोड़ा सा स्कार्स हो, थोड़ा सा गड्ढा हो, आई फील लाइक इट्स गुड टू गो बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे टाइम्स में, जिसका थोड़ा बहुत दाग रहता है. इनफैक्ट मेरा ही पिंपल्स है और आई वॉज वर्किंग विद एयरलाइंस. सो यू आर गुड टू गो गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड वाओ, मुझे लगा और क्वेश्चन होगा. एंड दैट इज इट, वी आर डन विद द Q&A. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. आई होप मैंने आप लोग का आंसर्स अच्छे से दिया हो. जितना तक हो सके मैंने रियल जेन्युइन, मुझे जो लगता है, जो एक्सपीरियंस के साथ मैंने देखा है, सोचा है, वही मैंने बोला है. तो आई होप यू गाइज रियली लाइक्ड इट. इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लव योरसेल्फ. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.